Hello and welcome to Learn English. My name is Akashveer and in this video I am teaching chapter number 2 of class 10th. Its name is A Long Walk to Freedom. It is an extract. It is an extract, or we can say it's an excerpt. Okay, it is an extract taken from the autobiography of Nelson Mandela, and its autobiography, its name is A Long Walk to Freedom. Autobiography. What's the difference between biography and autobiography? Biography is just a book that has all the history, all the life chronicles, all the events of a person's life written in it by somebody else. An autobiography is a book of the history of all the important things which are written by himself. अगर कोई इंसान अपने बारे में सब कुछ लिखता है तो वो सब कुछ गया. So autobiography is a book, we can say that a book of a story book or history book of a person. उसमें उस इंसान से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं और वो सारी की सारी बातें उस इंसान के द्वारा खुद लिखी हुई होती हैं. तो ये है नेल्सन मंडेला की autobiography. Who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was born on 18th July 1918. Nelson Mandela was born on 18 July 1918 and he was the first black president of South Africa. First black president. What do you mean by this? Because before 1994 on 10th of May 1994, Nelson Mandela becomes the first black president of South Africa. What does it mean? It means that before Nelson Mandela, there was no one who had been the president of South Africa with their black color. Why? Just because during the first 20th century, during the first decade of 20th century, यानी कि 1901-2 के आसपास, 1901-1902 के आसपास, even before the birth of Nelson Mandela, नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले ही क्या हो गया था, वहाँ पर अंग्रेज़ लोगों का शासन चल ही रहा था. वहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन करते करते एक अपना रूल बना दिया. What was that rule? What was that system? The system named apartheid. Its name is apartheid. Apartheid was a system erected by the Britishers, by the white, by the dominating regime there. Regime का मतलब होता है rule. Okay, rule, government, rule बोल दो, गवर्नमेंट बोल दो, रेन भी होता है, इसका मतलब REIGN, रेन. So apartheid system was erected, शुरू किया गया था, खड़ा किया गया था. Apartheid system was erected by the Britishers in the first decade of 20th century. And in the last decade of the 20th century, all the Britishers, all the whites, जो कि ब्रिटेन के हों या अमेरिकन हों, all the whites, they were just the guests, because the host was South Africa and Nelson Mandela had become the first black president of South Africa. अब उसके बारे में क्या क्या हैं चीज़ें. जब चैप्टर शुरू होता है, it begins with the ceremony when Nelson Mandela was taking his oath. So it was all about his swearing in ceremony. So Nelson Mandela was Nelson Mandela was present and he was on the podium stadium जो भी होता है स्टेज के ऊपर, एंड जो जगह थी वो थी एम्फी थिएटर. क्या होता है? एम्फी थिएटर होता है खुला थिएटर, एक खुला सा थिएटर, चारों तरफ उसमें कुर्सियां हैं, ग्राउंड है और एक स्टेज है, दैट इज एम्फी थिएटर. सैंडस्टोन का बना हुआ है, उसके बाजू में सैंडस्टोन की बनी हुई बिल्डिंग है. यूनियन बिल्डिंग मतलब होता है यूनियन की बिल्डिंग, और यूनियन का मतलब जैसे इंडिया में यूनियन कहाँ है? दिल्ली में. और दिल्ली से कंट्रोल जो जगह है वो भी, उनमें भी यूनियन, क्या बोलते हैं उनको? यूनियन
यूनियन की बिल्डिंग्स हो गई, यूनियन की टेरिटरीज हो गई ना, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यस। सो यूनियन बिल्डिंग्स के पास, यूनियन बिल्डिंग के पास प्रिटोरिया में, कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है, प्रिटोरिया। तो नेल्सन मंडेला बेचारा बिल्कुल एकदम बहुत ही परेशानियां झेलता हुआ, बहुत सारे जो इनके लोग थे जिनका जिक्र इन्होंने किया, उन सब से लड़ते हुए 27 years ही हैड बीन इन जेल। 27 सालों के लिए ये जेल में चले गए थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज पीपल। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि व्हेन ही वॉज बोर्न ही थॉट दैट ही वॉज फ्री। व्हेन ही वॉज बोर्न, जब वो पैदा हुए बच्चे थे, ही थॉट ही वॉज फ्री, ओके। एंड व्हेन ही बिकेम बॉय, जब इनको अपने परिवार का समझ में आया तब भी इनको लगा कि आई एम फ्री। ही सेड कि फ्रीडम है मेरे पास, आई एम फ्री एंड आई जस्ट हैव टू फॉलो एंड अबाइड बाय माई कस्टम्स। अबाइड बाय मतलब क्या हो गया, अबाइड बाय मतलब होता है मानना, ABIDE, abide by. So he knew that he just have to follow his father and abide by all the customs and rituals of his society or community, और बस उतना ही प्रेशर है इसके ऊपर, and other than that he is free. But धीरे धीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धीरे धीरे को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुअली, ना कि स्लोली, धीरे धीरे, ओके। स्लोली नहीं मतलब ग्रेजुअली एज ही ग्रू अप ही अंडरस्टूड दैट हिज फ्रीडम इज एन इल्यूजन। क्या समझ में आया इसको, कि फ्रीडम इज इल्यूजन, वहम है। इल्यूजन मतलब वहम, इल्यूजन है, फ्रीडम है ही नहीं, आज़ाद हो ही नहीं। एंड देन ही डिसाइडेड टू लीव हिज पेरेंट्स, लीव हिज फैमिली, and he started to fight for his society। और जब ये बात आती है तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हर इंसान के ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। एवरी पर्सन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन क्या होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं ड्यूटी। हर इंसान की दो ड्यूटी है। एक ड्यूटी तो है उसकी फैमिली के लिए, फर्स्ट ड्यूटी दैट ही हैज़ इज़ फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पीपल, फॉर हिज कम्युनिटी, फॉर हिज मतलब फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन है वो है फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज चिल्ड्रन, फॉर हिज पेरेंट्स। एंड सेकेंड है वो है उसके नेशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, फॉर हिज सोसाइटी, फॉर हिज नेशन, है ना। अपने देश के लिए, अपने देश के लिए उसको क्या क्या करना है उसके बारे में है सेकेंड ऑब्लिगेशन। और दोनों ड्यूटीज़ को एक साथ फुलफिल कर पाना, इट बिकम्स वेरी वेरी टफ फॉर अ पर्सन हु वर इन अफ्रीका। एक ऐसे इंसान के लिए इन दोनों ड्यूटी का फिल, देखो हम लोग जिस देश में हैं जहां हम हैं, वी ऑल आर फ्री, वी ऑल आर प्रिविलेज्ड, हम एकदम फ्री हैं, वी ऑल आर एंजॉइंग। तो हम दोनों चीज़ों को फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि दूसरा वाला नेशन वाला तो कोई काम है ही नहीं इतना बड़ा, है ना। पढ़ना लिखना है, जो करना है वही करना है, ऐसा कुछ तो है नहीं। बट फैमिली को भी आप सब कुछ करते ही हैं। बट नेल्सन मंडेला की जब बात करें तो नेल्सन मंडेला जब फैमिली के बारे में सोचने लगा कि फैमिली को मैं अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे पैसे दूँ, उनको अच्छा मैं कमा के दूँ, उनको सारे राइट्स दूँ, उनको एजुकेशन दूँ, हॉस्पिटल की सहूलियत दूँ, बट नेल्सन मंडेला कुड नॉट डू दैट बिकॉज द पीपल ऑफ ब्लैक कलर इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला, दे वर नॉट अलाउड टू आस्क फॉर देयर राइट्स। उनको उनके राइट्स के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। दे कुड नॉट आस्क फॉर देयर राइट्स। They were not able to do anything related to their rights, their privileges. They were just treated, not even like human beings, है ना, दास, नौकर, एक जानवर की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता था। They were just servants, servant बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं, वही, they were treated like animals, and that's why it is जो ये apartheid system है, it is called the greatest human disaster in the history of Africa. Human disaster, it is the greatest human disaster in the history of Africa. And 1994 को इसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए नेल्सन मंडेला बहुत खुश हैं। नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने बारे में कि जब मैं वहाँ जेल में था, यहाँ पर एक किस्सा शुरू करते हैं जेल का।
व्हेन नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल इन द प्रिजन, वो बताते हैं कि वहाँ पर जो इनको मार रहा था इन लोगों को, व्हेन ही वॉज पुट टू द लिमिट्स, पुट टू द लिमिट्स मतलब वही फुल हाई लेवल के कूटना, तो जब वो उनको बुरी तरह से हंटर बेल्ट जो भी रहा होगा डंडी, जब इनको बार बार मारा जा रहा था, ही लुक्ड एट दैट टाइम द ग्लिमर ऑफ होप, द ग्लिमर ऑफ होप नहीं, क्या बोल सकते हैं, द ग्लिमर ऑफ मर्सी, दया, ग्लिमर ऑफ पिटी, ही सॉ द ग्लिमर ऑफ पिटी, ग्लिमर की पिटी देखी, मर्सी देखी, दया देखी उसने उस आदमी की आंखों में। एंड देन ही अंडरस्टूड दैट लव इज नेचुरल। क्या समझ में आया इसको? लव इज नेचुरल। ये यहाँ की कहानी है जब इसमें बताता है कि लव इज नेचुरल एंड हेट इज अक्वायर्ड, हेट इज गिवन, हेट इज टॉट, हेट इज अक्वायर्ड, अक्वायर करता है इंसान हेट को, अक्वायर्ड और टॉट, सिखाई जाती है। चिढ़ना, लोगों से लोगों से जलना, चिढ़ना, परेशान करना, ये सब चीज़ें अक्वायर्ड है, इंसान सीखता है दूसरों से, बट लव इज़ नेचुरल। सो दिस इज़ व्हाट नेल्सन मंडेला से। सो एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन लव एंड हेट? सो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, लव इज नेचुरल बिकॉज इट अपीयर्स इन द हार्ट, इट गेट्स इंड्यूस्ड फ्रॉम समवेयर and from nowhere. It is a godly thing. It's a godly thing. But hate is acquired. It is created. It is generated by the society, by the thoughts. लोगों की बातों से, विचारों से hate create होती है। उसके बाद जब नेल्सन मंडेला उन लोगों के साथ जब उनको बहुत ही ज़्यादा जब उनको कूटा पीटा जा रहा था, तब उन्होंने एक और बात समझी वहाँ पर। वो बात है कि ब्रेव कौन है? हु इज़ ब्रेव? ब्रेव कौन है? बोल्ड कौन है? कौन है बोल्ड? हु इज़ ब्रेव? ब्रेवरी क्या है? ठीक है, तब उन्हें इस बात का पता चला। और फियर क्या है? फियर क्या है? तब उन्हें पता चला कि ब्रेव आर नॉट दोज हु डू नॉट फियर। ब्रेव वो नहीं जिन्हें डर ही नहीं लगता है। ब्रेव्स आर दोज हु फियर। एक बार तो वो डरते हैं, बट देन दे हैव करेज, है ना, करेजियस है। ब्रेव की जगह दूसरा वर्ड लिख रखा है आपकी बुक में, करेजियस। करेज और करेजियस लोग कौन होते हैं? करेजियस आर नॉट दोज हु डू नॉट फियर, बट करेजियस आर दोज हु फियर बट देन दे हैव एबिलिटी टू कॉन्कर दैट फियर। उस डर को क्या कर लेने की हिम्मत है? कॉन्कर कर लेना। कॉन्कर मतलब जीत लेना, टू हैव ट्रायम्फ ओवर इट। इफ यू कैन ट्रायम्फ, इफ यू विन द फियर, देन यू आर करेजियस। कौन नहीं डरता? मूर्ख नहीं डरता, और जो इंसान नहीं है, जो जीव नहीं है, निर्जीव नहीं डरता। एक पत्थर है, उसको कहीं रख दो, उस पत्थर को डर नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, टूट जाऊंगा। He doesn't fear. All human beings have fear. All human beings fear of something or the other. But who are courageous? Courageous are those who first fear, but then they have the ability to conquer that fear, to face that fear. They do not run away. And what is courage? Courage is not the absence of fear, but triumph over it. ये सेंटेंस नेल्सन मंडेला का। You must write these sentences in your answers. Courage is not the absence of fear, but triumph over it. डर की कमी नहीं है courage. डर है, लेकिन डर के साथ आप बस फेस करते हो उसे, उस डर को हरा देते हो। That is courage. If you have, you can win everything. इसके बाद नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि कैसे चेंज हुआ, चेंजेस के बारे में बात करें। इन द बिगिनिंग व्हेन नेल्सन मंडेला वाज बोर्न, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही सेज कि जब मैं बच्चा था तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, एंड आई न्यू दैट आई वाज फ्री, बट एज आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड दैट द फ्रीडम इज एन इल्यूजन. Because for the fulfillment of the twin obligations, to fulfill the obligations of my family, towards my children, towards my parents, to fulfill the obligation towards family, he was not able to fulfill the obligations towards nation. तो nation के obligations को वो fulfill नहीं कर पा रहा था. And to fulfill the obligations towards his nation, he was not able to fulfill the obligations towards his family. So he had to leave his house. छोड़ना पड़ा कुछ दिन के लिए, फिर उसे जेल में बंद कर दिया. तो he was not able to fulfill all the obligations. He was not able to help his family. He was nothing for his family. कुछ बचा ही नहीं फैमिली के लिए, जेल में पड़ा है, फैमिली परेशान है.
Okay, and then when he looked at other people, Nelson Mandela understood that not only his freedom was curtailed, not only his freedom was curtailed, curtail मतलब कम कर देना, काट देना, फ्रीडम सिर्फ उसकी फ्रीडम को नहीं काटा गया है, नॉट इवन हिज फ्रीडम वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन ऑफ हिज ओन कलर, जो इसके कलर के हैं, whoever who was black, whoever who was of that race from which Nelson Mandela belonged to, जो उस रेस के हैं, उन सब की फ्रीडम को अंग्रेजों ने काट दिया था. This is what Nelson Mandela was very sad about. And the system apartheid was nothing but the greatest human disaster in human history. Okay, उसके बाद नेल्सन मंडेला में जो चेंजेस थे, मैं क्या बता रहा था, ही वॉज ए लॉ अबाइडिंग पर्सन, लॉ को मानने वाला पर्सन था. अबाइड करना मतलब मानना. फ्रॉम एन लॉ अबाइडिंग पर्सन ही बिकेम अ क्रिमिनल. लॉ को मानने वाला था, लेकिन जब लॉ ही गलत होगी तो लॉ के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. लॉ के अगेंस्ट जाना ही क्या हो जाता है, क्रिमिनल. तो फ्रॉम एन लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी मतलब क्या होता है, अटॉर्नी मतलब वकील होता है, अटॉर्नी. फ्रॉम द लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी ही बिकेम अ क्रिमिनल. ओके, एंड देन फ्रॉम अ फैमिली लविंग पर्सन, फैमिली लविंग जो घर में रहे, फैमिली लविंग, फ्रॉम ए फैमिली लविंग पर्सन ही बिकेम ए मंक. M-O-N-K, monk नहीं, monk. From a family loving person he became a monk. So in this way Nelson Mandela totally changed. Why? Just because he was fighting, he wanted to free his people from the shackles of, shackle क्या होते हैं, shackle बंधन, हथकड़ी या पैरों की बेड़ियाँ, from the irons, from the chains, from the bondages. ये वर्ड हैं जो आपको यूज़ करने हैं अपने आंसर्स में. From the bondages. Nelson Mandela wanted to make his people free from the bondages of, किस की bondage थी, bondages of poverty. Poverty क्या होती है, गरीबी. From the bondage of poverty, deprivation. डिप्राइव करना क्या होता है, किसी से कोई चीज़ छीन लेना. From the poverty, deprivation, discrimination. सो इन सब चीज़ों से वो अपने लोगों को आज़ाद करवाना चाहता था. और अपने स्पीच में उन्होंने ये बोला भी कि जो ये सन है, साउथ अफ्रीका की धरती पे जो ये आज सन उगा है आज़ादी का, इट विल नेवर सेट, ये कभी डूबेगा नहीं. एंड जो पुअर्टी है, डेप्रिवेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑल दीज थिंग्स विल नेवर बी देयर. कोई ऑपरेशन नहीं होगा. नेवर 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 अगेन शैल बी ए पर्सन बी ऑप्रेस्ड बाय समवन एल्स. कभी भी इस धरती पर दोबारा किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान के द्वारा ऑपरेशन नहीं होगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट दी एट्रॉसिटीज. एट्रॉसिटी क्या होती हैं, atrocities. It was all about the atrocities inflicted on, inflict मतलब होता है करना, किया जाना, ठीक है, inflicted on the whites. It was, this chapter is all about the atrocities inflicted by the white people, by the white regime on the black people on their own soil. उनकी खुद की ज़मीन के ऊपर, उनके खुद की देश में, उनके खुद के देश में ब्लैक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हुए हैं. Endless oppressions and atrocities. Oppression मतलब वही अत्याचार, oppressions. So it was a dark story of the people who looked dark, but many from them were diamonds, like Nelson Mandela, who fought for the freedom of their people. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब दो लोग हो गए, एक तो ऑप्रेसर हो गया, ऑप्रेसर जो कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, अत्याचारी हिंदी में लिखेंगे ना, अत्याचारी. और जो ऑप्रेस्ड है वो कौन है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है. जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार का मतलब शिकार हो गया एक तरह से. तो नेल्सन मंडेला, जो हमें क्या लग रहा है कि जो ऑप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो तो बंद है, वो तो दुखी है, वो परेशान है. क्या ऑप्रेसर भी दुखी, क्या ऑप्रेसर भी खराब है, क्या ऑप्रेसर भी किसी जेल में बंद है? तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो दोनों के दोनों ही फ्री नहीं है. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नीदर द ऑप्रेस्ड नोर द ऑप्रेसर इज फ्री. नीदर द ऑप्रेस्ड नोर द ऑप्रेसर इज फ्री. जस्ट बिकॉज ऑप्रेस्ड जो है, द ऑप्रेस्ड
those which were who were oppressed, they were behind the bars, they were in the prison. क्या हो रहा है, ये हिचकियाँ आ रही हैं. They were in the prison. वो लोग तो प्रिजन में थे, वो लोग तो जो oppressed हैं वो तो जेल में बंद हैं. But what about the oppressor? According to Nelson Mandela, he says oppressor is also behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. याद रख लेना दोनों वर्ड को. Oppressor is, he is, because both of them were क्या वर्ड इसमें, deprived of their freedom. Both of them were deprived of their freedom. Oppressed is not free, we know that. Even the oppressor is not free just because he is behind the bars of prejudice. He's behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Narrow-mindedness मतलब छोटे विचार, सूक्ष्म सोच, छोटे विचार, शॉर्ट साइटेडनेस. तो वो शॉर्ट साइटेडनेस के पीछे, नैरो माइंडेडनेस के पीछे, प्रेजुडिस के पीछे, वो उसके पीछे बंधा हुआ है जो हुआ है. तो कोई भी आज़ाद नहीं है. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. लगभग ख़त्म ही हो गया. ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू. थीम क्या है? इट इज़ द थीम ऑफ दिस इज़ फ्रीडम. थीम क्या है इसकी? फ्रीडम. फ्रीडम के साथ साथ हार्ड वर्क है ना. द बिलीव इन योर सेल्फ यू हैव टू कीप. उस बिलीव के बारे में जो तुम, whenever you are feeling you are weak, whenever you are feeling that you are not winning, you are losing, you are failing and you're not able to get up again, in those times you just have to listen to the stories of people like Nelson Mandela. In our history we also have the people in our life like Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. All these people were of the same attitude. Even they were not fearful. उन्हें भी किसी चीज़ का डर नहीं था. They fought bravely for the freedom of their country. अपने देश की आज़ादी के लिए they fought. यही है. अब इनमें से जो न्यू स्टाइल के जो क्वेश्चन आने लगे हैं, दैट यू ऑल ऑफ यू हैव टू प्रैक्टिस हुएवर इज वाचिंग, कि क्वेश्चन होते हैं मिक्स करके. अब फ्रीडम 2-3 हो गए. एक यहाँ से नैरो माइंडेडनेस वगैरह हो गया, और एक उधर से फायर एंड आइस में भी जो बताया ना, आइस हेट्रेड, वो उन दोनों से ज्वाइन करके आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कॉम्बिनेशन? What if Nelson Mandela is talking to Robert Frost and Robert Frost is telling कि मैंने कहा था ना, people are just hating each other, and just because of hatred है ना, लोग एक दूसरे के मतलब ख़त्म करने पे लगे हुए हैं. They do not feel about the pains of others. They are numb. लोग क्या हो गए? एक दूसरे के पेन के लिए नम हो गए हैं. They are indifferent. और यही यहाँ पर देखा गया था. They are indifferent to the pains and sufferings of others, and that's why the people who were white, they inflicted on atrocities and pain and sufferings to the people who were black on their own soil. उनके खुद के घर में उनको दुखी किया गया सालों साल, लगभग 100 साल के आसपास का तो ये टाइम हो गया जिसमें अपार्टहाइड था. उससे पहले भी रहा होगा. ओके, तो यही था. प्रैक्टिस वेल एंड लेट अस मूव. मिलते हैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ. टिल देन, हैप्पी प्रिपरेशन, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स इन एडवांस.